तो let me welcome you to my show. आप अपना पहले इंट्रोडक्शन करवाएंगे मेरे नाजरीन को. आप Okay. please. Yes, surely. Hi, my name is Mohit. I am actually from Delhi. I am working in Delhi. So. करते हैं. मुझे ये बताएं कि हमारे जरदारी साहब आए हुए हैं ना इंडिया आज. हाँ, आज तो right from every news channel. I think I wasn't seeing anything else. वो सुबह के टाइम पे आए. What all food he ate. What did he eat? It was funny. It actually was funny because we were not seeing anything. IPL matches हो रहे हैं यहाँ पे. So people were actually glued to one side for the matches, and the other side they were seeing the news, and it was all about Zardari visit to India because it obviously it's hyped. I think it's time that both countries became friends, क्योंकि आप इतने अरसे से दुश्मनी हो रही है 60 साल से, और मेरा ख्याल है कि ये जरदारी भी इसी इंटेंशन से गए हैं, और अब ये मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया है कि दोनों मुल्क जो है ना सारी दुश्मनी भुला के, बिकॉज दुश्मनी वैसे भी बेबुनियाद बेसलेस दुश्मनी थी. हमें कोई वजह नहीं बनती ना दुश्मनी की. हमने कौन सी आपकी भैंसें चुराई हैं? ये पंजाबी का मुहावरा है. आप पंजाबी है. पुराने ज़माने में जब कोई किसी की भैंसें चुरा लेते थे ना तब उनकी दुश्मनी पड़ जाती थी. तो whatever happened years and years and years ago, और people made bad choices. जो हमारे लीडर्स थे उस वक्त के, उन्होंने बैड डिसीजंस किए. तो अब कोई रीज़न नहीं बनती मेरे ख्याल से कि उसको ड्रैग किया जाए इतना ज़्यादा. मैं आपने मेरे पिक्चर्स देखने के बाद फेसबुक पे कमेंट दिया कि आपको मेरे पिक्चर्स देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इंडिया है. Yes, and that's interesting because it is India basically. I mean it was part of India. It was India. ये बस उसको उसके एक हिस्से को पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया. Exactly. Because my forefather, all from my mom's side and from my dad's side, all are from Pakistan. As like it was supposed to be India at that point of time. So, however, after partition, all of them moved to Delhi or some of the other places. But yeah, it was one country. But I think the problem the very common problem which is in between India and Pakistan, I mean, I've experienced it. As I told you, I have few friends in other countries who are Pakistani, and I have encountered few experiences. In fact, most of the experiences were good. But the first thing which I have encountered with any Pakistani I met for the first time, the first question these guys asked me, or probably a Pakistani would ask me, "Are you a Muslim?" That actually irritates me a lot. Because imagine I'm saying hello to you and you said hi to me, and the second question you will ask me, I'm a Muslim. How does it make any difference? I actually, with one person, I really got angry. It happened at probably the Turkey airport. I was over there and I met a person. He was talking in Hindi, as in like your Urdu and Hindi is pretty much same. So I was purchasing something. So as in like you feel like he is from the same place, you tend to talk to them. So I said hi to them, and eventually I got to know he's a Pakistani. But when he asked me, am I a Muslim, that actually irritated me a lot, because the second thing I told to him, dude, I'm an Indian. So does it matter I'm a Hindu or a Pakistani or a Sikh? Because why are you asking this question to me? This is the way we are trained there. हमारा किसी आप पाकिस्तानी से बात करें, वो अपनी आइडेंटिटी आपको मुसलमान पहले बताएगा और पाकिस्तानी बाद में बताएगा, और इंसान भी उसके बाद बताएगा. वो ये मुसलमान हम लोग पहले बनते हैं और इंसान उसके बाद बनते हैं. And trust me, in our country, as in like most of the people who are educated and who have actually their mind in place, they will always say that they are Indian first and the religion will come second. This is how it should be in Pakistan. अभी बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भाई आप पहले पाकिस्तानी बने, फिर उसके बाद आप मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू बने. क्योंकि ऐसे ही है ना, जैसे हम अमेरिका में रह रहे हैं, पहले हम अमेरिकन हैं, फिर हम बीच में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं. किसी भी मुल्क में जब आप अपने मुल्क की नेशनैलिटी को पहले लेके आते हैं ना, उसके बाद मुल्क में पीस होता है. जब आप ये कहेंगे कि हम पहले मुसलमान हैं और उसके बाद पाकिस्तानी है और पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है, तो फिर डिस्क्रिमिनेट होती है ना अगली जो दूसरी जो माइनॉरिटीज होती हैं मुल्क में. इसलिए exactly. I don't know how much it is true, but I was reading some blog some other day, and at the time of partition, I actually read there was certain good amount of percentage of minorities in Pakistan. However, if you see it now, it has reduced down immensely. As in, people say, probably your side of people will not say, but for us, people say over here that they were forcefully converted for some or the other reason. They're like the maximum conversions happen forcefully. I am no one to judge it, but that's what
we or probably someone who's outside from Pakistan sees minorities in Pakistan. Because if you see over here, if there was an X percentage of Muslim in India at that point in time, that is rose, that is increased. However, you don't see the same replicated in your country. That's what I feel. I don't know how much true it is, but I think you are the better person to tell me about it. I don't know either. मुझे ये आपकी बात बिल्कुल सही है. You're absolutely right कि इंडिया में उस वक्त मुसलमान जितने थे अब उससे भी ज्यादा मुसलमान हैं, और पाकिस्तान में पार्टीशन के वक्त जितने हिंदूज थे अब उससे बहुत कम हिंदू हैं. I mean, I think many of them converted and then maybe they migrated. हाँ, maybe they left the country. I mean, बात करें पाकिस्तान में minorities जो हैं अब अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट की जाती. लेकिन असल में ना हम लोगों को पाकिस्तान में समझ भी नहीं अभी तक आती कि उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करने का क्या मतलब है. जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिंदू या क्रिश्चियन जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. ठीक है, अब ये I feel which is sick. लेकिन जो एक आप पाकिस्तानी कोई बात बताएंगे ना, वो तो ये कहेगा कि ये बिल्कुल सही बात है, हमारा मुसलमान मुल्क है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात ठीक है. तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत हो तो फिर तो ये डिस्क्रिमिनेशन है. डिस्क्रिमिनेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू होती है ना, फिर उसके बाद छोटी हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट हिंदूज क्रिश्चियंस. लेकिन उनको पता नहीं है. इंटरेस्टिंगली जब आप किसी पाकिस्तानी से, मुझे भी ये सारी बातें नहीं पता थी, जाहिर है वहां तो मैं यही समझती थी कि यही सही है. जिस तरह से हमें बड़ा किया जाता है, हमें ब्रेन वॉश किया जाता है, अब यहाँ आके मुझे पता चला है कि ये एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट देम. I completely agree to this because I've actually experienced it. I've seen quite a few videos of yours. In fact, all of the videos, to be honest. But I still remember I had one Pakistani friend, as in he's still a friend. And when I showed him your videos, he actually didn't believe in your videos. I thought, because I was trying to play a prank with him. I told him that I found the first sensible Pakistani in this world when I saw your videos. Thank you. And he actually and when I told him, this is what is the reality. You live in Pakistan, you will not realize it, right? The moment you will move out, there's a world outside Pakistan, and that's what I'm sure you also changed the moment you moved out, right? No, it took some time. I mean, it took some time. It took months and years to understand all this. लेकिन वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, जब हमें ये पता ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पाकिस्तानी से बात करें तो वो कहेंगे कि लोग क्रिश्चियंस को अपना मजहब प्रैक्टिस करने की इजाजत है, हिंदूज को अपना मजहब प्रैक्टिस अपने घरों में रहें, प्रैक्टिस करें. लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर एक हिंदू या क्रिश्चियन घर से निकल के तबलीग करना शुरू करे अपने मजहब की, तो उसका क्या बुरा हाल किया जाएगा. ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसको वैसे भी छोटे लेवल पे लोग उनको जिंदा जलाने या मारने की कोशिश करते हैं. इस तरह के कुछ वाकयात हुए हैं. तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है कि आप नहीं जा सकते उनको और उनको जाके तबलीग करें अपने रिलीजन की. जब वो करने की कोशिश करें तो आप उनको मना कर दें या उनको मारेंगे. डिस्क्रिमिनेशन है. ये समझना कि सिर्फ वो कोने में लग के बैठे रहें और कोने में लग के छुप छुपा के अपना मजहब प्रैक्टिस करें, और हमें पता है कि वो छुप छुपा के अपना मजहब प्रैक्टिस करें और हम उन्हें कुछ नहीं कहते, तो ये असल में हमने उन्हें राइट्स दिए हैं. ये लोगों को ये लोगों को ये नहीं ना पता कि इक्वल राइट्स ना होता क्या है. ये तब मुझे समझ आई जब मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ मुझे इक्वल राइट्स मिले, फिर मुझे पता चला कि असल में इक्वल राइट्स देना या इक्वल राइट्स लेना क्या होता है. और उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने इक्वल राइट्स दिए हैं, सेक्युलर बनाए अपने मुल्कों को. ये इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है ना अभी भी. बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स वगैरह इस टॉपिक पे बात करें, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है क्योंकि ब्रेन वॉशिंग एक्सटेंसिव है ना. ईयर्स आफ्टर ईयर्स हमें इस तरह की बातें उन्हें सिखाई हैं, तो अभी भी लोगों को समझ नहीं आती. लोग ये, अगर आप टू नेशन थ्योरी है इसके खिलाफ बात करें, अगर आप कहें कि भाई अगर हम सारी जिंदगी इसी चक्कर में पड़े रहे, आप देख ले बांग्लादेश हमसे अलग हो गया. अगर मुसलमान वाकई एक कौम होते, सारी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो एक नेशन ना होते. जब दुनिया के मुसलमान एक नेशन है ही नहीं, और यहाँ पे हम अमेरिका में डिफरेंट रिलीजन्स हैं और एक नेशन है. इससे हमें ये समझ आती है ना बात कि इससे नेशन जो है वो रिलीजन से नहीं बनती. लेकिन ये बात अगर आप कहें कुछ पाकिस्तानियों को, तो वो कहेंगे कि आप ट्रीजन कर रहे हैं, आप अपने, बल्कि किसी ने ये ज़्यादा हमें जो है पागल, इसने ट्रीजन के चार्जेस भी लगा दिए ना. I find him joker. He's one funny man. And he has gotten worse. शुरू में ना वो उसकी बातें फिर भी लोगों को इम्प्रेस करती थी क्योंकि वो बोलना आता था, नॉलेज भरा था उसका. लेकिन आई ट्रूली बिलीव कि वो उसको ना कोई साइकोसिस है
या पैरानोया है, या आई थिंक एक साइकाइट्रिस्ट उसको वैल्यूएशन दे सकता है और डायग्नोसिस दे सकता है. अरे बाजी अंडरस्टैंड, बिकॉज व्हेन यू विल सी हिज वीडियोस नाउ यू विल फील लाइक बंदे में दिमाग है, मतलब ही इज वेरी वेल स्पोकन, ही इज इंटेलेक्चुअल, बट नो ही वाज, अब उसका दिमाग खराब हो गया. हाँ नहीं शुरू में ना दिमाग है बिल्कुल. हाँ नहीं शुरू में हाँ नहीं इंटेलेक्ट. पता है क्या असल में ट्रेजेडी ये है कि जितने भी पागल लोग हैं ना साइकोटिक वगैरह, वो कोई देखो मेंटल रिटार्डेशन इज डिफरेंट देन साइकोसिस. जो मेंटल रिटार्डेशन है ना वो होती है कि आपको नजर आ जाती है कि बंदे का IQ कम है. लेकिन जो साइकोसिस और पैरानोया है ना, या तो ये बंदा साइकोटिक और पैरानॉइड है अगर ये वाकई जिसकी बातें हैं, या फिर इसका एजेंडा है और इसको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि लोगों की जानें जाती हैं, लोगों इंतशार फैलता है ये अपने उस एजेंडा के लिए ना, झूठ पे झूठ बोलता जाता है. लेकिन हो सकता है कि जनरली सिक हो, ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक भी हैं, पैरानॉइड भी हैं, साइकोटिक भी हैं, और ये लोग मेंटली रिटार्डेड नहीं होते, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनके जहन में एक आइडिया ऐसा आ जाता है जो इनके ख्याल के मुताबिक ठीक होता है, और जो मर्जी कर लो ये इसको चेंज नहीं करते. इसके लिए दवाइयाँ होती हैं. मेरा तो ख्याल है कि इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन हो और इसको दवाइयों पे डालें तो शायद ये ठीक हो जाए. मैं बताऊँ no, honestly, मैं मजाक नहीं करी. मैं I truly believe he's sick. Initially when I have seen his, in fact I got to know about him through your videos only. तो मैंने जब इसकी पहली दूसरी वीडियो देखी, मेरे को लगा कि यहीं से उठा के इसको मैं, मतलब I was so angry on him. लोगों को नाराज करते. मजे की बात. Then I saw a few more videos of him. Then I started laughing at him. I was like, कुछ नहीं हो सकता इस इंसान का, because he's like over the top. पता नहीं क्या दिमाग है. नहीं, फिर कुछ ऐसी बातें, इस तरह के लोग शुरू में इंप्रेसिव बातें करते हैं, लेकिन फिर वो ऐसी बातें शुरू कर देते हैं कि फिर लोगों को पता चल जाता है कि ये पागल हैं. पिछले दिनों इसने एक वीडियो बनाई जिसमें इसने कहा हुआ कि हम इंडिया को, अपने आप को हम कहता है, मतलब अपने आप को मैं नहीं कहता, वो जो मुगलिया बादशाह नहीं थे वो अपने आप को हम कहते होते. हम इंडिया को मैसेज देते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो इस्लाम कबूल कर लें. अगर आपने इस्लाम कबूल ना किया तो गज़वा-ए हिंद के लिए तैयार हो जाएं, हम आ रहे हैं. What is गज़वा-ए हिंद? I really don't know what it is. मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता. मतलब I'm sure I'm poor with the terminologies over there, but गज़वा जो है ना ये मुकद्दस वॉर को कहते हैं, जो इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ी जाए. ठीक है. तो जब इस्लाम फैला था इनिशियली तो गज़वाज हुए थे, उनको अब हम गज़वाज कहते हैं. लेकिन ज़ाहिर हामिद का कहना ये है कि एक फाइनल गज़वा होगा जिसके बाद हम सारी दुनिया पे छा जाएंगे, और वो जो गज़वा है ना वो हिंदुस्तान के साथ होगा. तो अब ये कि एविडेंस तो इसके अगेंस्ट आती है. जिस भी बंदे को जरा से समझ है उसको तो समझ आती है. इसने गज़वा हिंद की बात की ना, तो बल्कि वो जो आपको पता है भांड क्या होते हैं, पंजाबी भांड जो है ना. अच्छा, पंजाबी भांड जो था इनको क्या कहते हैं, जो अच्छा आपने देखे होंगे कि जो पंजाबी शादियों में कॉमेडी करते हैं. एक तो डांसर्स होती हैं ना, एक होते हैं लोग जो जोक सुनाते हैं शादियों पे आके, उनको भांड कहते हैं. आपको पता, उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं. वो सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज चलते आ रहे हैं पंजाब में. ठीक है. इवन वो भांड एक दफा टीवी पे बैठे हुए, एंड आई मीन दैट्स आवर कल्चर बेसिकली, एंड दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड देयर जोक्स. अगर आप उनको अंडरस्टैंड करें तो यू रियली एंजॉय दोस्त. वो बैठे बात करे तो उसमें से एक कहता है, उनमें से एक ज़ाहिद हामिद बना हुआ, तो वो कहता है कि इस तरह में हम इंडिया पे अटैक करेंगे तो उन पे मिसाइल फेंकेंगे या उन पे बॉम्ब फेंकेंगे. तो वो भान कहता है मामा उन्होंने भी तो उनके पास भी तो है ना बॉम्ब्स, आपका क्या जगह, हमारे बच्चे मर जाएंगे. और उसकी बात बिल्कुल ठीक है. आप किसी पे बॉम्ब फेंकते हैं, अगले के पास भी बॉम्ब है, वो आप पे फेंक देगा, आपके सारे बच्चे मर जाएंगे. आपके ये लोगों को बताना कि जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, ये सबसे बुरी फॉर्म है, सबसे बुरी फॉर्म है ब्रेन वॉशिंग की. कि जब आप किसी को ये बताते हैं ना कि जिंदगी की कोई, इसलिए नबूवत का दावा करने की भी कोशिश कर चुके एक दफा ना. ये किसी बंदे के साथ था, उसने नबूवत का दावा किया था, ये उसके साथ था. ये फिर उसने कहा कि मैं ये अगर इसे हो सकता तो ये रियली ये क्लेम कर दे कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, लेकिन अब इसे हो नहीं सकता. तो ये इसने दूसरा जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ना इसकी, वो ये कि खलीफा बनना चाहता है, तो इसने अब खिलाफत के उसमें आ गया है. तो भाई ही इज क्रेजी. तो लेकिन